इन सब चीजों में दिशा निर्देश और मार्गदर्शन आपको ही देना पड़ेगा. That's also part of the home. Thank you very much. And yes, sorry. Don't think you know the person. That's all. Even if you know the person, tell yourself, I don't know this person. वो जो भी माइंडसेट है, प्रेजुडिस है, एक पर्टिकुलर मामले में था. प्लीज अंडरस्टैंड, उस मामले में वो वैसा था, इस मामले में ऐसा नहीं है. चलो बताओ. I experienced recently this. I am having some problem with the principal of the school in which my children are studying. And when I went to talk to her, she immediately reacted saying that I have come to discuss that issue, some issue. I said no, I have come to discuss the other issues. She immediately relaxed. So we said, as far as the other issues are concerned, I don't think there is any problem. She said, as far as the other issues are concerned. So we had a normal conversation. So because I said, let's talk like adults. Let's not talk like children. That's it. So, friends, I am really honored throughout the day by the presence of Param Pujya Swamiji. I must really express my thanks, and I look forward to your blessings tomorrow also, and definitely have a discussion with you after the program. And I must thank all of you for all the support and the patience. Okay? And so see you tomorrow at morning 9 o'clock. Thank you very much. Yeah, friends. So this session is concluded. We will have Chaviyan now. Exactly 5 to 6, and the counter will be closed. No food, nothing will be served after that tonight. Again next day morning 7:55, not before that. And at 6:30 sharp, we'll be meeting here. And I expect all of you here. Please don't go to visit Bombay. Bombay is too crowded today. 3 celebrities are in Mumbai. President of India, Sonia Gandhi and Sharad Pawar. If you go out, there is a lot of security checks. Somebody may catch you as a terrorist, so be here only, and we can, anyway, like him, joke apart. So what I'm telling is, we have got very interesting session. What we had a session throughout the day was general leadership and what qualities we can have. What we are going to have from 6:30 p.m. onward is more important for us in terms of our organization, that is Jain Doctor Federation, and what future we want to make about this organization. And that is why I say, please be here sharp at 6:30. And about the groups, we have already given you the papers and topic. 12 people of those 2 tables can discuss during this dinner break. Select your leader, start thinking, discussing the point, and we meet again at 6:30. Thank you very much, friends. डॉक्टर शास्त्री ने जो इतना सुंदर एक लीडरशिप के बारे में हमें विजन दिया. इनफैक्ट ये जो लीडरशिप वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें 2 पार्ट थे. एक पार्ट था कि इन जनरल व्हाट इज लीडरशिप. तो डॉक्टर शास्त्री जो सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक हमें सिखा रहे थे लीडरशिप के गुण, क्योंकि आप सब नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं. मुंबई में से भी जिनको इन्वाइट किया है, दे आर ऑल अवर रीजनल एंड जोनल कोऑर्डिनेटर्स. तो जैन डॉक्टर फेडरेशन की डोर अब आपके हाथों में है. इस फेडरेशन को कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, और जो हमारे पूज्य नयपद्म सागर जी का जो एक सपना था, जो उन्होंने 1907 से शुरुआत की थी, पिछले 8-9 सालों में काफी प्रगति हमने की है. फिर भी काफी ऐसे पॉइंट है कि जहां हमें काफी बारीकाई से नजर करनी होगी, उसको सुधारना होगा, उसको और स्ट्रांग करना होगा. बड़ी खुशी की बात है जिस हिसाब से जैन डॉक्टर फेडरेशन की और नेशनल जैन डॉक्टर फेडरेशन की ग्रोथ ऑल ओवर कंट्री में हुई है. पर 9 साल में ये ग्रोथ अभी भी हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम स्लो पेस पे चल रहे हैं. मैं बात इसलिए खुल के कह रहा हूं क्योंकि अभी यहां जो मौजूद है सब घर के हैं. तो यहां अगर ये बात हम खुल के चर्चा नहीं करेंगे तो शायद हम हमारी कमजोरियों को कभी पहचान नहीं पाएंगे. और अगर हम हमारी कमजोरियों को पहचान नहीं सके तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे. हमको डॉक्टर शास्त्री ने बहुत क्लियर ढंग से कहा कि आपको एनालाइज करना है व्हाट इज योर वीकनेस,
and what is your strength. And unless and until we analyze what is our weakness and what is our strength, we can't go ahead. तो इसीलिए ये सेशन की खास भूमिका बनाई गई है कि जहां पे हमने नेशनल जैन डॉक्टर फेडरेशन के लेवल पर, रीजनल लेवल पर, चैप्टर लेवल पर क्या किया जाए, तो यही आज के टॉपिक है। नहीं, फर्स्ट स्लाइड ओनली। तो आज के टॉपिक है, थोड़ा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एफर्ट्स है। जेडीएफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्लीज ये लाइट्स बंद कर दीजिए ना, ऊपर की आगे की बंद कर दो, पीछे की रहने दो। पब्लिक रिलेशन, फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इतने टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं, बाद में हमारे डॉक्टर रसिक आएंगे, हमारे दूसरे मित्र आएंगे, दे विल बी टेकिंग अदर सब्जेक्ट, सर्विस प्रोजेक्ट्स, खास प्रोजेक्ट, नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स। तो इसका एक ब्रीफ में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ऐसा मानना है कि अगर क्या वो गया आदमी को बुलाने गए, कोई बात नहीं, तब तक हम चल रहे हैं, नहीं चले लाइट रहे या लाइट नहीं रहे, जेडीएफ को चलते ही रहना है, जेडीएफ को चलते ही रहना है। अगर बंबई में लाइट चली गई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं रहा, तो जेडीएफ नहीं रुकेगी। ये संकल्प हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बड़ी बातें करेंगे, पर जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव बेस अगर आपका मजबूत नहीं होगा, तो आपके पास वो रिसोर्सेस नहीं होंगे, आपके पास वो स्किल्स नहीं होगी, आपके पास वो कैपेसिटी नहीं होगी कि आप बड़े प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वो सिर्फ बातें बन के रह जाएगी, हम घर चले जाएंगे, सब भूल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं जेडीएफ एडमिनिस्ट्रेशन से। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये हर कोऑर्डिनेटर को, हर लीडर को, हर लेवल पे समझना बहुत जरूरी है। आज मैं अगर यहाँ हमारे बीच में बैठे हुए सभी दोस्तों से पूछूंगा कि हमारे एनजेडीएफ का चैप्टर लेवल का क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। हमारे मुंबई में बहुत सारे लोगों को अभी तक मालूम नहीं है, क्योंकि हमने कभी इसके बारे में गौर नहीं किया। आपको जो बुकलेट दी गई उसमें सब डिटेल है, मैं सिर्फ आपको हाईलाइट दूंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जेडीएफ का आज जो है, उसमें एक एनजेडीएफ जो हमारा मेन बॉडी है, नेशनल बॉडी, हेडक्वार्टर, देन द रीजनल कमिटी, and then the regional committee is, India is divided into 10 regions at present. As and when need arise, we may divide it further, क्योंकि ये तो हमेशा रिवाइज होती हुई चीजें रहती है। और लोकल एंड जोनल कमिटी, these are the three different things. Now we come to what is the NJDF headquarter. We start with NJDF headquarter में हमारी जो व्यवस्था है, उसमें हमारे चेयरमैन, इमीडिएट पास चेयरमैन, अभी तक हमारे पास कोई इमीडिएट पास चेयरमैन नहीं, क्योंकि हमारी पहली ही कमेटी अभी तक चल रही है। देन द प्रेसिडेंट, देन कम्स द इमीडिएट पास प्रेसिडेंट, विच इज ऑफ कोर्स एट प्रेजेंट वी डोंट हैव, एंड देन द वाइस प्रेसिडेंट्स। मैंने यहाँ 5 दिखा है, जरूरी नहीं 5 है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होते हैं बनाने चाहिए। इसमें कुछ बातें ऐसी चार्ट में बताई गई है जो एट प्रेजेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ी डिफर हो। We are not discussing a constitution, neither we are passing it today. It is a proposed that should be the administrative setup of the JDF. जब हमारी जनरल बॉडी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस होगी, we can take a decision on this subject. ये आपको एक सोचने की बात है। Then the secretary and the treasurer, joint secretary and joint treasurer, PRO and joint PRO, and the various committee chair. ये हमारा एक नेशनल बॉडी का एक स्वरूप है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एनजेडीएफ रीजन, अब पूरा इंडिया इतना बड़ा है, बहुत डिफिकल्ट है सिर्फ एक सेंट्रल बॉडी को उसको हैंडल करना। तो हमने जो प्रयास किया था एनजेडीएफ ने पिछले कुछ वर्षों में, इंडिया को एक 10 रीजन में डिवाइड किया था। तो उसके लिए एक रीजनल कोऑर्डिनेटर होने चाहिए, रीजनल सेक्रेटरी होने चाहिए, रीजनल ट्रेजरर होने चाहिए, रीजनल पीआर होने चाहिए। एडिशनल कमेटी मेंबर अगर वो एडॉप्ट करना चाहते हैं अपनी कमेटी में, तो आपको रीजन लेवल पे डिसाइड करना है। तो वो उस रीजन का, जैसे महाराष्ट्र एक रीजन है, बॉम्बे इज वन रीजन, वैसे बहुत सारे एमपी इज आई थिंक वन रीजन। सो लाइक 10 डिफरेंट रीजन्स आर देयर, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, वो भी इसमें प्रिंट किया हुआ है, यू कैन गो थ्रू। एंड द थर्ड कम्स इज द चैप्टर लेवल। इंडिविजुअल सिटी का जो चैप्टर लेवल होता है, जैसे बॉम्बे है, अहमदाबाद है, औरंगाबाद है, पूना है, सूरत है, सर्टन प्लेसेस में हमारा एनजीडीएफ चैप्टर काफी अच्छी तरह बना हुआ है। सर्टन चैप्टर में बना हुआ है,
पर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बेस को अभी तक इतना स्ट्रेंथन नहीं किया गया है। और सर्टन सिटीज में ग्रुप ऑफ जॉइंट डॉक्टर्स है, पर अब तक उसका एक फॉर्मल स्वरूप नहीं हुआ है। तो उसका क्या ढांचा होना चाहिए? तो उसमें फिर से चेयरमैन, इमीडिएट पास्ट चेयरमैन, प्रेसिडेंट, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, पीआरओ, जॉइंट पीआरओ, committee chairman, and then depend on need of your city, you divide your chapter into the region and zone, depend on आपकी सिटी कितनी बड़ी है। जैसे बॉम्बे बहुत बड़ा है तो हमें बहुत वेरियस जोन में और रीजन में उसको डिवाइड करना पड़ा। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन सिटिंग इन ओपेरा हाउस टू हैंडल द अफेयर एट द विरार, तो फिर वहां मोटिवेशन नहीं हो सकता है। तो हम लोकल जोनल कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करते हैं, रीजन कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करते हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर का स्वरूप, ऐसा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रोटोकॉल, एक नई चीज जो मैं जेडीएफ और एनजेडीएफ में इंट्रोड्यूस करना चाहता था, प्रोटोकॉल। हम बहुत सारे संस्थाओं से जुड़े हुए, मैं लाइन्स से जुड़ा हुआ हूं, या कुछ लोग होंगे जो रोटरी से जुड़े। हर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब मीटिंग होती है, जब फंक्शन होता है, तो हमें एक डिसिप्लिन रहता है कि भाई पहले किसको एड्रेस किया जाए, who will preside the meeting, who should be in the center of the meeting, what is the sitting arrangement on the dais, how they should be presented। तो जो प्रेजेंट ऑफिस बेरर है, पास्ट ऑफिस बेरर है, और जो दूसरे कमेटी चेयरमैन है, तो उनको किस ऑर्डर में रिकॉग्नाइज किया जाए। रिस्पेक्टिंग आवर लीडर्स, रिस्पेक्टिंग आवर एल्डर्स, रिस्पेक्टिंग आवर पास्ट लीडर्स इज वन ऑफ द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द जेडीएफ और एनी ऑर्गेनाइजेशन। और वो सिस्टम एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेट रहता है। तो उसमें क्या होना चाहिए? चेयरमैन, प्रेसिडेंट, पास्ट चेयरमैन, स्टार्टिंग विथ इमीडिएट इज द फर्स्ट एंड देन इन ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी, पास्ट प्रेसिडेंट्स इमीडिएट फर्स्ट देन इन ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी, वाइस प्रेसिडेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड इन ऑर्डर, सेक्रेटरी, देन ट्रेजरर, जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट ट्रेजरर, पीआरओ एंड जॉइंट पीआरओ, रीजनल कोऑर्डिनेटर्स, then zonal coordinators, committee chairman, and I already told you the importance of the protocol। तो अब जब भी हम एनजेडीएफ लेवल पे, चैप्टर लेवल पे, रीजनल लेवल पे कोई भी जेडीएफ का फंक्शन करेंगे, मीटिंग करेंगे या कोई भी प्रेजेंटेशन करेंगे, तो आई थिंक वी शुड फॉलो दिस प्रोटोकॉल। थैंक्स। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सर, मेंबरशिप ग्रोथ। हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बना दिया, पूरा ढांचा हमने बना दिया, पर अगर मेंबर नहीं रहे, मेंबरशिप ग्रोथ नहीं हुई, चैप्टर नहीं बढ़े, तो सिर्फ एनजेडीएफ नाम ही ले जाएगा, उसके आगे कुछ नहीं हो। शायद आपको अच्छा नहीं लगे मैं इस भाषा में बात कर रहा हूं, पर ये बहुत एक रियलिटी ऑफ फैक्ट है। और ये कैसे होगा? हम सबको पहले समझना पड़ेगा कैसे करना है, और फिर हम सबको इसके लिए सिंसियर ऑनेस्ट एफर्ट करना है। मेंबरशिप ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि मेंबरशिप कैसे बढ़ाए। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स आज भी बात कर रहे थे, पहले भी बहुत सारे जगह हमारी ये चर्चा हुई कि मेंबरशिप को कैसे बढ़ाई जाए। 7I, आप खाली इसको फॉलो करके देखना, जब आप अपनी सिटी में जाए, जस्ट फॉलो इट, आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स। जेडीएफ में हमारा एक रूल है कि हम जेंट्स वी इनवाइट डॉक्टर ऑफ एनीपैथी, एनी ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड allied branches, alternate medicines all over. We invite as a member of. So identify first those members. So somebody will have to make a group. नाम लिख के, टेलीफोन नंबर निकाल के, invite the member. एक बार इनफॉर्मली उनको बुलाइए, बैठिए उनके साथ, चाय पानी के लिए, डिनर के लिए, लंच के लिए, जैसे भी आपको सुटेबल होता है, उनको इन्वाइट कीजिए। उनको इन्वाइट करोगे, वो आपके साथ ज्वाइन होंगे। एक बार जेडीएफ में ज्वाइन होने के बाद उन मेंबर को कैसे इसमें इन्वॉल्व किया जाए, उसके लिए इंडोक्ट्रिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडोक्ट्रिनेशन जो वर्ड है, जो हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, लायंस में सब जगह यूज करते हैं, कि जेडीएफ का जब एक नया सदस्य आता है, उसको जेडीएफ के बारे में किसी सीनियर्स को बैठ के फुल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि जेडीएफ क्या है, क्यों इसका मेंबर बनना चाहिए, इसका मेंबर बनने से आपको क्या बेनिफिट होगी, आप क्या सोसाइटी को दे सकते हैं, सोसाइटी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाउ इट विल अफेक्ट योर लाइफ। जब तक एक इंटेलिजेंट एजुकेटेड डॉक्टर ये नॉलेज ग्रहण नहीं करेगा, वो इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, तो आपको थोड़ा टाइम, वक्त देना पड़ेगा। तो इंडोक्ट्रिनेशन, देन इंडक्शन, इस चीज को हम भूल जाते हैं, हमारी संस्था में नहीं करते। 1400 मेंबर बॉम्बे में ज्वाइन हो गए,
ऑफिस बेयरर्स को मालूम है पर दूसरे मेंबर को नहीं मालूम, तो एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि एक अच्छे फंक्शन में उनका एक ओथ सेरेमनी की जाए। जब मेंबर को लगे कि मैं नया मेंबर यहाँ आया, यहाँ मेरा इंपॉर्टेंस है, तो उसको हम कहते हैं इंडक्शन सेरेमनी। एक अच्छी सेरेमनी जो हमारे जैन फिलोसॉफी के संग में हो। ऐसा नहीं कि हम डांस का प्रोग्राम रखे, ये रखें, अपने रिवाज से अपनी फिलोसॉफी में रिस्ट्रिक्ट करके भी अच्छा फंक्शन में कहीं भी इन्वाइट करके उनको इंडक्शन किया जाए। फिर इंडक्शन करने के बाद अगर हम उस मेंबर को भूल जाएंगे तो वो मेंबर अपनी संस्था में टिकेगा नहीं। उसको हमारे जो जूना ग्रुप है उसके साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहिए ताकि वो सबके साथ घुल मिल जाए। देन इन्वॉल्वमेंट, मेंबर तभी टिकेगा अपनी संस्था में जब आप उसको किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी हो, सर्विस एक्टिविटी हो या और कोई भी एक्टिविटी हो, पर उसको आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्टर शास्त्री भी बता रहे थे, इंसेंटिव। मेंबर को इंसेंटिव देना चाहिए। अच्छा काम करता है उसको इंसेंटिव देना चाहिए। इंसेंटिव आप पोजीशन के हिसाब से दे सकते हैं, अवार्ड्स के हिसाब से दे सकते हैं। ये 7I को अगर आप फॉलो करेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम आपके मेंबरशिप ग्रोथ के सॉल्व हो सकते हैं, पर सिंसियर एफर्ट की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाउ टू फॉर्म JDF चैप्टर इन योर सिटी, अनदर वेरी वाइटल क्वेश्चन। प्रपोजल मस्ट हैव साउंड नॉलेज। अगर आप कोऑर्डिनेटर है, आप प्रपोज कर रहे हैं कि आपकी सिटी में आपको JDF चैप्टर बनाना है, तो पहले आपको JDF को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप किसी के पास जाएंगे, आपके पास ही नॉलेज नहीं, तो आप उनको क्या नॉलेज देंगे। तो पार्ट ऑफ ये लीडरशिप सेमिनार वही है कि आपकी नॉलेज बढ़े। इस बुकलेट में इतनी सारी इंफॉर्मेशन अगर आप पढ़ोगे तो आपको नेशनल जैन डॉक्टर फेडरेशन, जैन डॉक्टर फेडरेशन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो पहले आपका नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है। कहीं भी आपको कोई डाउट, क्वेरीज हो, आप किसी भी सीनियर के साथ बैठ के क्लेरिफाई कर लीजिए। पर जब नया मेंबर आपसे सवाल पूछे, आपके पास उसका आंसर होना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट ऑल जैन डॉक्टर्स इन योर सिटी, मेक ए लिस्ट, कॉल ए इनफॉर्मल मीटिंग, अप्रेज देम, इन्फॉर्म देम अबाउट JDF, क्या करना चाहते हैं, उसके एम्स, विजन, मिशन, ऑब्जेक्ट्स क्या है। लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड डॉक्टर को बुलाइए, एक ग्रुप फॉर्म कीजिए, उनकी एक फॉर्मल मीटिंग बुलाइए, ऑफिशियल JDF लॉन्च कीजिए, इनरोल मेंबर, रिक्वेस्ट देम टू फिल मेंबरशिप फॉर्म, फोटोग्राफ लीजिए, उनका बायोडेटा लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत काम आता है। फिर बाद में लेने जाएंगे बहुत डिफिकल्टी होती है। और आपका JDF चैप्टर बन जाएगा। उसके बाद आप NJDF को आपके ऑफिस बेरर, सब मेंबर्स का डिटेल्स उनको भिजवाइए ताकि नेशनल कोऑर्डिनेटर्स एंड ऑफिस बेरर कैन आल्सो कोऑर्डिनेट विद दिस। आप एफर्ट करेंगे सिस्टमेटिकली, आपका ये चैप्टर बन सकता है, बहुत इजीली बन सकता है। कंटिन्यूएशन में फीस का एक स्ट्रक्चर जो आज तक चला है, 500 रुपया मेंबरशिप के लिए, 250 रुपया स्टूडेंट्स के लिए। जब स्टूडेंट पास हो जाता है तो उसको वही 250 रुपये में हम कन्वर्ट टू लाइफ मेंबरशिप। कॉल जनरल बॉडी मीटिंग, पास योर कॉन्स्टिट्यूशन। जनरल बॉडी मीटिंग बुलाएंगे तो मैं बाद में मीटिंग के बारे में बताऊंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन पास कीजिए, आपके JDF चैप्टर को ऑफिशियली रजिस्टर्ड कीजिए। डोंट रन इट एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी, रजिस्टर इट ऑफिशियली, टेक ATG सर्टिफिकेट, क्योंकि आपको आगे प्रोजेक्ट लेने के लिए बहुत काम आएगा। एंड उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखिए। इन्फॉर्म डिटेल टू सेक्रेटरी, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, रेगुलर, ये आप जा सकते हैं, आपके उस बुक में सब दिया हुआ। ATG सर्टिफिकेट लीजिए, बैंक अकाउंट खोलिए, रिजोल्यूशन जनरल बॉडी में पास करने का। योर JDF चैप्टर इज फॉर्म, गेट सेट टू स्टार्ट एक्शन एज पर द एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ JDF। विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आई एम श्योर इस वर्कशॉप के बाद अगले 1 साल में कम से कम 7-8 सिटी में नए JDF चैप्टर खुलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है JDF को भविष्य में आगे बढ़ाने के लिए। सिर्फ कुछ पॉइंट दूंगा, किस किस पॉइंट्स पे हम इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं। इंटरनल इमेज बिल्डिंग अपने खुद के मेंबरों में, अपने मीटिंग्स से, कम्युनिटी में, सर्विस एक्टिविटीज से। फाइनेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोसाइटी हमें सपोर्ट करती है अच्छे कार्यों के लिए। अगर हम उसके आंसरेबल नहीं है तो सोसाइटी में आप अपनी क्रेडिट खो देंगे। अगर क्रेडिट खो दी तो आपकी संस्था आगे नहीं चल सकती। तो उसकी डिटेल्स आपको दी गई है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर ये बहुत जरूरी है। पर्सनल बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं जब बाहर जाता हूं, कहता हूं कि मैं JDF का मेंबर हूं, तो मेरी एक इमेज लोगों के सामने होनी चाहिए कि आई बिहेव
in accordance with the principle of the organization and our religion. अगर मैं ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता हूं तो आई थिंक सामने वालों को लगेगा कि डॉक्टर केपीजे हिपोक्रेट है, उसके साथ जुड़ने में मजा नहीं है। तो आपको ये इमेज लोगों के सामने, अपने मेंबर्स के सामने, अपने जहां भी आप कांटेक्ट में आते हैं तो बनानी बहुत जरूरी है। पर्सनल बिहेवियर एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने एक रखा है, प्रोफेशनल कंडक्ट। इस सिर्फ जेडीएफ के लिए नहीं है पर अपने खुद के लिए एज ए डॉक्टर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप जब जेडीएफ के मेंबर हैं, एक डिस्कशन में टॉपिक आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर मेडिकल एसोसिएशन एंड जैन डॉक्टर फेडरेशन। शायद उसमें जो डिस्कशन करने आएंगे वो डिटेल में बताएंगे, मैं डिटेल में उनका सब्जेक्ट चिन्हना नहीं चाहता हूं, पर प्रोफेशनल कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एज ए मेंबर ऑफ जैन डॉक्टर फेडरेशन। ऑफ कोर्स वी आर ऑल प्रोफेशनल्स, वी चार्ज फीस, आवर हाउस रन्स ऑन दैट, देयर इज नो डाउट। आई डोंट से कि आप चैरिटी में अपनी क्लिनिक चलाइए, पर आप जो सलाह देते हैं उस सलाह को सही ढंग से दीजिए। वी ऑल नो वेयर मेडिकल प्रोफेशन हैज गॉन, आई नीड नॉट गो इन डिटेल ऑफ इट, बट वो प्रोफेशनल कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी सलाह में वजन होना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को, वो जैन हो कि नॉन जैन हो, ऐसा लगना चाहिए कि जैन डॉक्टर के पास मैं जाऊंगा तो मेरे को मिसगाइड नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड थिंग, हमारे जैनिज्म के थोड़े प्रिंसिपल्स जो है, जो हम फॉलो करते हैं, वी ट्राई टू प्रोपोगेट दैट फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। आई डोंट से टू ए मुस्लिम और ए पारसी, यू से आप नॉन वेजिटेरियन मत खाओ क्योंकि जैन रिलीजन में ये अलाउ नहीं है। प्रॉब्ली ही मे नॉट लाइक। आप बताइए उसका क्या साइंटिफिक नुकसान, आपकी हेल्थ वेजिटेरियन करने में आपको कितना फायदा होगा। गो फ्रॉम साइंटिफिक बेसिस। सो ये प्रोफेशनल कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मीटिंग्स, फिर से मैं डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे हमारे दोस्तों ने विनती की थी कि आज का साहिब जी, सब दोस्तों ने विनती की थी कि हो सके तो आज का सेशन जरा जल्दी पूरा करना, लोग काफी थक गए, इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूं। मीटिंग्स, मैनेजिंग कमेटी मीटिंग, जनरल बॉडी मीटिंग, रेगुलर मीटिंग, फंक्शंस, उसको कैसे करना है, क्या प्रोग्राम करना है, पूरा एक चार्ट दिया है मैंने इसमें। तो जो भी लीडर है रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग दिस मीटिंग, प्लीज गो थ्रू दैट चार्ट, क्योंकि जब भी आपका कम्युनिकेशन जाता है मेंबर्स के पास, परफेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पर्टिकुलरली वो जनरल बॉडी मीटिंग एंड मैनेजिंग कमेटी मीटिंग। तो मेंबर को लगेगा कि हमारे ऑफिस बेरर आर वर्किंग इन ए सिस्टमैटिक डायरेक्शन, दे विल रिस्पेक्ट यू, दे विल लव यू, दे विल लाइक यू। सो प्लीज गो थ्रू दैट चार्ट, वी विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ दैट मीटिंग। सर्विस एक्टिविटीज, मेरे दोस्त डॉक्टर भरत परमार आपको डिटेल में बाद में सर्विस एक्टिविटीज पे एक टॉपिक है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं, पर प्लानिंग सर्विस एक्टिविटीज के लिए मैं सिर्फ 2 लाइन कहूंगा, वो स्लाइड तो आप बाद में बुक में पढ़ लेना, कि जब भी हम एक एक्टिविटी प्लान करते हैं, पहले तो लीडर्स को और जो कोर ग्रुप है उसको एक विजन देना है कि रियली इस एक्टिविटी की जरूरत है हमारे एरिया में। सेकेंड है उसको प्रॉपर प्लानिंग, होमवर्क, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, प्रॉपर फॉलोअप एंड द रिजल्ट, और उस रिजल्ट को हमारे डोनर्स, हमारे सपोर्टर्स, हमारे वेल विशर्स, हमारी सोसाइटी और हमारे मेंबर्स के सामने टाइम टू टाइम प्रोड्यूस करना, ये बहुत जरूरी है। अगर ये आप नहीं करते हैं तो आपकी सर्विस एक्टिविटीज का कोई मायने नहीं रखते। सिर्फ फोटो निकालने के लिए, फंक्शन करने के लिए, पेपर में वाहवाही करने के लिए या समाज में वाहवाही करने के लिए, हाथ तोड़ा पहनने के लिए अगर हम सर्विस एक्टिविटीज करते हैं तो उस सर्विस एक्टिविटी से न आपके दिल को शांति होगी, न सोसाइटी आपसे खुश होगी, न आपके मेंबर आपसे खुश होंगे, और अच्छे लोग छोड़ के चले जाएंगे। फिर जो सिर्फ पब्लिसिटी ओरिएंटेड पीपल है वही आपके साथ रहेंगे, तो उस सर्विस एक्टिविटीज का कोई मीनिंग नहीं। बीइंग ए डॉक्टर जब हम कैंप करते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती है। बिजनेसमैन करते हैं ठीक है, वो अपने पब्लिसिटी के लिए करते हैं, पॉलिटिशियन अपनी पब्लिसिटी के लिए करते हैं। डॉक्टर जब कैंप करता है उसे मालूम होना चाहिए कि मैं 50 पेशेंट ही भले देगा, भले 500 नहीं देगा, भले 5000 नहीं देगा, पर उस 50 को आई गिव ए परफेक्ट गाइडलाइन अबाउट हिज हेल्थ, तो आपको लगेगा कि एज ए डॉक्टर यू हैव डन रियली गुड जॉब। सो प्लीज गो थ्रू दिस सर्विस एक्टिविटी। और एक खास लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जब हम करते हैं, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के पहले उस प्रोजेक्ट को हम कैसे निभा पाएंगे और हमारे में वो ताकत है कि नहीं, वो पहले सोच लेना। नहीं तो मैं मेरा क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस बताता हूं, बहुत सारे प्याऊ बनते हैं, बहुत सारे टेलीफोन बनते हैं, सब बनते हैं, हाथ तोड़ा होता है, फोटो हो जाता है, बड़े बड़े फंक्शन हो जाते हैं, वाहवाही हो जाती है, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो खक्कड़ धज हो जाते हैं, उसको रिपेयरिंग करने के पैसे नहीं रहते, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं बढ़ता है, वाटर कूलर बंद हो जाता है,
लायंस का बोर्ड रहता है, लोग आके गाली देते हैं, कैसे लायंस वाले खंडर पड़ा। बदनामी संस्था की होती है, प्रेसिडेंट करने वाला हाथ थोड़ा पहन के चला जाता है। अगर हमारे में ताकत नहीं है हमारे परमानेंट प्रोजेक्ट को मेंटेन करने की, तो उस प्रोजेक्ट को हाथ मत लगे। अगर करना है प्रोजेक्ट तो पहले उसका प्रोविजन कीजिए। एक एग्जांपल दूंगा, अभी जैन डॉक्टर फेडरेशन मुंबई और लायंस क्लब ऑफ चर्चगेट ने मिलकर लगभग 2.5 से 3 करोड़ के खर्चे से एक डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने की शुरुआत की। जब इसका इनिशियल टॉक हुआ तो मेरा पहला प्रपोजल था कि एक 50 लाख का कॉर्पस चाहिए, जब तक ये प्रोजेक्ट सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है रन करने के लिए। 50 लाख का कॉर्पस चाहिए कि जिसके ब्याज से इस प्रोजेक्ट को हम रन कर सकें। सो फर्स्ट प्रोविजन, मशीनरी का क्या खर्चा आएगा, जगह क्या आएगा वो बाद में, पहला 50 लाख एफडी करने का है, उसके बाद आगे का खर्चा गिनो। सो दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंस ऑलरेडी डिस्कस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात बताता हूं, लोगों से डोनेशन लेके अपनी मजा मस्ती का अगर नजारा करोगे तो लोग एक जूते तो नहीं मारेंगे, अपन डॉक्टर है, पर नेक्स्ट टाइम खड़े नहीं रखेंगे हम आगे। बस इससे आगे मुझे कुछ नहीं बोलना है। पर्सनल बिहेवियर, आई थिंक आई ऑलरेडी टॉक्ड ऑन इट, सो वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड। प्रोफेशनल कंडक्ट, आई थिंक वी ऑलरेडी गॉन। यू सेंस द ट्रबल वाटर बिफोर स्टॉर्म बिगिन। 1 मिनट रुक जाना भाई, बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने बता दी आपको, पर संस्था है तो स्टॉर्म वाटर आएगा। एक ऐसा सब्जेक्ट मैं लेने जा रहा हूं, बहुत सेंसिटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है प्लीज। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट इज ए पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कन्फ्लिक्ट से आप बच के नहीं रह सकते। मैं बताऊंगा कहां अपन धोखे में आ जाते हैं। कन्फ्लिक्ट इज ए पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। कन्फ्लिक्ट से हम कोई बच नहीं सकते, और जो संस्था कन्फ्लिक्ट से बचती ना वो संस्था ही नहीं है, तो वहां सब यस मैन है। केपी जैन ने कहा ये लाल है तो लाल, सब हाथ ऊपर कर देते लाल। आपको वैसी टीम चाहिए? बहुत धीरे से आवाज आई, क्योंकि वैसी टीम जिस संस्था में रहेगी वो संस्था डूब जाएगी। अगर केपी जैन कोई मिस्टेक करता है, भरत वर्मा उसके बेस्ट फ्रेंड है, बट उसके पास एक करेज होनी चाहिए कहने के लिए केपी यू आर रॉन्ग, इसको सही ढंग से किया जाए, तो वो मेरा सच्चा दोस्त है। सिमिलरली आपको अगर कोई रोके आप गलत कर रहे हैं, रॉन्ग। पर कन्फ्लिक्ट हमेशा गलती से नहीं होती। कन्फ्लिक्ट मेजॉरिटी ऑफ टाइम बिना गलतियों से होती है। क्यों होती है कन्फ्लिक्ट? पुअरली डिफाइंड विजन एंड गोल। दो लड़ने वाली पार्टी है, दोनों अपने विजन और गोल उनको मालूम नहीं है, तो उनके विचार टकराते रहते। डायरेक्टिव लीडरशिप, कि मैं चेयरमैन हूं, बस मैं आपको ऑर्डर करूंगा, तुम ये करके आ जाओ, तुम ये करके आ जाओ, तुम ये करके आ जाओ, बस हर टाइम बॉसिंग। आफ्टर ऑल यू आर ए ऑनररी मेंबर, आई एम ए ऑनररी ऑफिस बेरर, नाइदर ऑर्गेनाइजेशन पे मी नॉर आई पे यू एनी रेन्यूमरेशन। तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं आपके ऊपर बॉसिंग करूं। प्यार से, प्रेम से समझा के, फ्रेंडशिप ब्रदरहुड बना के हमें काम करना है। पुअर प्लानिंग ऑलवेज लीड टू कन्फ्लिक्ट। तो लीडर को, पर्टिकुलरली ऑफिस बेरर को प्रॉपर प्लानिंग करना है। लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मैं कोई ऐसा काम करता हूं जैसे एक बड़ा फंक्शन किया, अगर मैं प्रॉपर उसकी ट्रांसपेरेंसी मेरे मेंबर को नहीं दूंगा, शक, और जब शक दिमाग में आएगा कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगी संस्था में। मिस इंफॉर्मेशन, मिस इंटरप्रिटेशन में आऊंगा इस टॉपिक पे थोड़ी देर बाद में। पुअर कम्युनिकेशन, कई बार ऐसा होता है कि हर काम हम सही करते हैं पर कम्युनिकेशन पुअर होता है, और जब पुअर कम्युनिकेशन होता है तो मिसचिफ मेकर्स जो होते हैं ना, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कैसे इन दोनों को झगड़ा। मैं आपको लायंस की एक स्टोरी बताता हूं, बोले 1 मिनट ज्यादा लगे। लायंस में हमारा बहुत पॉलिटिक्स होती है। एक ऐसा भी वक्त आया था कि लोगों ने मुझे और भरत भाई को झगड़ाने की बहुत कोशिश की थी। हम दोनों एक ही क्लब से, दोनों पास्ट गवर्नर हैं, और 2 नेता जब एक क्लब में होते हैं ना, तो दोनों एक दूसरे को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मैं उससे अच्छा, मैं उससे अच्छा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं कि हमको कभी लगता ही नहीं कि हम 2 है। अब सामने वालों ने क्या कोशिश की कि इनको झगड़ाए तो इनकी क्लब टूटे, बहुत कोशिश की थी। पुअर कम्युनिकेशन हुआ ना तो वो कोशिश सक्सीड हो जाती है। पर मेरे और भरत भाई के बीच में इतना अच्छा कम्युनिकेशन, उसको कोई भी कोई बात बोलता है ना तो वो आके सीधा मेरे से बात करता है, मुझे कोई कुछ बात बोलता है तो मैं जाके उनसे सीधा बात करता हूं, तो वो कभी सक्सीड नहीं हो पाए। आगे इंपॉर्टेंट, आई, मी एंड माई ईगो।
ये जो एटीट्यूड लेके लीडर चलेगा ना, उस संस्था में कंफ्लिक्ट ही कंफ्लिक्ट होगी। तो वी हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ वी, नॉट आई। इटियोलॉजी ऑफ कंफ्लिक्ट आगे, डिफिकल्ट एंड एग्रेसिव पीपल, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बुक में दिया हुआ है, मैं डिटेल नहीं जाऊंगा। बुलडोजर, पुल डाउन, क्लेमोर, टाइप ऑफ पीपल है कि जो डिफिकल्ट पीपल है ऑर्गेनाइजेशन में हैंडल करने के, और वो सभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, हर कैरेक्टर के पीपल। आप उसके बारे में आगे जाना है, ये नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। क्या हो गया, हंसे क्यों? नहीं, वो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है। पहचानते कौन? नहीं नहीं पहचानते कि महाराज साहब बैठे इसलिए कोई बोलना नहीं चाहता। हाँ, नहीं पहचानते कि महाराज साहब बैठे इसलिए कोई बोलना। साहब जी, ऐसा हो नहीं सकता कि यहां बैठा हुआ कोई व्यक्ति इसको नहीं पहचानता हो। पहचानते कि नहीं? तो बोलो ना, शर्म क्यों आती है? हाँ, वो हमारे संस्था की मेंबर हो सकती है। शी इज ए प्योर वेजिटेरियन लेडी। आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये फोटो इसलिए रखा हूं, बच के रहे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Beware of this beast. Not only this, but more dangerous than this. ये तो डेंजरस है ही, मुझे नहीं पूछना। ओबेरॉय कौन? विवेक ओबेरॉय ना? हाँ? अभी ना, उसके पहले सलमान। सबको पूछ लेना कितनी डेंजरस है। पर इससे भी डेंजरस कोई मिस है जिसका मैं आपको आज इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मिस इंफॉर्मेशन। अगर आप मिस इन्फॉर्म है, कॉन्फ्लिक्ट का बहुत खतरनाक चांस। मिस इंटरप्रिटेशन, आपके पास जो इंफॉर्मेशन आई उसका अगर आपने इंटरप्रिटेशन सही नहीं किया, खतरनाक। इंटरप्रिटेशन गलत करने के बाद नेचुरल थिंग विल हैपन इज मिसअंडरस्टैंडिंग। अगेन डेंजरस थिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, यू विल रिएक्ट विच विल बी अगेन ए मिसकंडक्ट। और वो सब होने से क्या होगा? संस्था विल बी मिसलेड। सो मिसलीडिंग, ये 5 चीजें हैं। मिस इंफॉर्मेशन, मिस इंटरप्रिटेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंडक्ट एंड मिसलीडिंग। मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। बराबर है? आगे। पर कंफ्लिक्ट तो है ही, अब करना क्या? उसका सॉल्यूशन तो लाना ही पड़ेगा। सिंपल है कहना, डिफिकल्ट है इंप्लीमेंट करना, बट इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे वो डॉन कहता है, नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल है, पर यहां ऐसा कुछ नहीं है। नए पद्म जी कहते हैं, कोई कार्य मुश्किल नहीं है, हर कार्य पॉसिबल है, अगर आपको उसके लिए आगे बढ़ना है तो। रिएक्ट पॉजिटिवली। यू एज ए लीडर व्हाट यू कैन डू? रिएक्ट पॉजिटिवली। कंसिडर एवरी प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी। कंफ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, इट्स ए अपॉर्चुनिटी फॉर लीडर टू प्रूव हाउ गुड लीडर ही इज। सब शांति से चलता है तो क्या प्रूव करना है? आज सब अच्छा चल रहा है, मुझे कुछ प्रूव नहीं करना है ऑर्गेनाइजिंग चल। पर सडनली यहां अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कल की सेशन कैसे चला नहीं है, देन द लीडरशिप ऑफ माइंड एंड माई टीम विल कम इन फ्रंट कि इस क्राइसिस को मैं कैसे सॉल्व करता हूं। दैट इज लीडरशिप। यू सेंस द ट्रबल वाटर बिफोर स्टॉर्म बिगिन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बार क्या होता है, कंफ्लिक्ट होती है, लीडर के कानों तक बात आती, बोला छोड़ो ना, टाइम जाएगा, सब सेटल हो जाएगा, आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, सब सेटल हो जाएगा, और अपन इश्यू को पीछे ढकेलते जाते हैं। इश्यू को पीछे ढकेलने से क्या होगा? इश्यू ऐसा आंधी बाढ़ बन के आगे आएगा कि आप भी उसमें बह के चले जाओगे। तो बिफोर स्टॉर्म वाटर कम्स, उसके पाल बांधने की शुरुआत और हो जानी चाहिए। मूव इनटू एक्शन बिफोर प्रॉब्लम एज्यूम्स डेंजरस प्रोपोजिशन एंड लुक फॉर इमीडिएट सॉल्यूशन रादर देन पुटिंग ऑफ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 6 अच्छे दोस्त हैं जो आपको कॉन्फ्लिक्ट में से बाहर निकाल सकते हैं, पर उसके लिए आपको प्रॉब्लम को समझने की बहुत जरूरत है। व्हाट एंड व्हाई, पहले कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो समझने की कोशिश किया। बहुत बार लीडर को मालूम ही नहीं होता कॉन्फ्लिक्ट किस बात पे और क्यों हो रही है। तो व्हाट एंड व्हाई इज द कॉन्फ्लिक्ट, व्हेन कब हुई, हाउ कैसे हुई, वेयर किस फंक्शन में हुई, किस जगह हुई, हु इज द रिस्पॉन्सिबल, इंडिविजुअल पर्सन और मल्टीपल पर्सन, एंड व्हाट नेक्स्ट।
सब समझने के बाद आगे क्या करना है। नेक्स्ट, यू हैव क्लियर सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। डिफाइन प्रॉब्लम, गैदर इंफॉर्मेशन, वही जो मैं पहले बता रहा था, गेट द फैक्ट्स, एनालाइज द फैक्ट्स, कंसिडर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवेल्युएट द अल्टरनेटिव्स, सेलेक्ट द बेस्ट वन, इंप्लीमेंट इट, मॉनिटर इट। खाली कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन आज करके हमने हाथ मिला दिया, चले गए, आप खुश, मैं खुश, संस्था खुश, सब खुश, महाराज साहब जी भी खुश, पर कल से अगर हम उसको मॉनिटर करना बंद कर दें कि भाई उसका रिजल्ट अच्छा आया कि नहीं, तो शायद 2 महीने बाद मालूम पड़ेगा कुछ हुआ ही नहीं, खाली हमने तो यहां नाटक ही किया था। उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है कि उसका रिजल्ट क्या हुआ। नेक्स्ट, आई थिंक वी गो नेक्स्ट, लॉट ऑफ थिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑन दिस। मेथोडोलॉजी टू रिजॉल्व करना, हम डॉक्टर है तो मेथोडोलॉजी नहीं, थेरेपी। कंफ्लिक्ट की थेरेपी क्या है? आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ डिसएग्रीमेंट, मेक अनबायस्ड नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कंफ्लिक्ट जब होती है लीडर और मेंबर के बीच में, या 2 मेंबर के बीच में, या 2 ऑफिस बेरर के बीच में, द लीडर शुड बी अनबायस्ड। मैं आपसे भी बात करूंगा, दूसरी पार्टी से भी बात करूंगा, अनबायस्ड रहूंगा, पर आई विल मेक ए नोट कि आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है, और अनबायस्ड। अगर भरत भाई मेरे फ्रेंड है तो मैं उसके फेवर में लिखना चालू करूंगा तो कंफ्लिक्ट मैं और क्रिएट करूंगा। देन अवॉइड ब्लेमिंग गेम्स। कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन में इंपॉर्टेंट है इश्यू को रिजोल्व करना। भरत भाई की गलती है, आपकी गलती है, सुधीर भाई की गलती है, बेगानी की है, केपी की है, वो डिसाइड नहीं करना है। कंफ्लिक्ट का रिजोल्यूशन का मंत्र है हमको इश्यूज को ब्लेम करना है और इश्यूज को सुधारना है। तो ब्लेमिंग गेम हमें नहीं खेलनी है। Try to answer following question. What is the disagreement? Again repetition है. Is it incompatible goal? मीन्स ये जो डिसएग्रीमेंट है वो रियली पॉसिबल नहीं है इसको सॉल्व करना। आर ईगोज द वे, ये आइडेंटिफाई करना लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि बहुत बार क्या होता है कंफ्लिक्ट कोई इश्यू रॉन्ग नहीं होता है, पर ईगो है, केपी करता है तो गलत, मैं करूंगा तो राइट, सेम चीज। सो वेदर इट इज ए ईगो फाइट, एंड समटाइम दिस कंफ्लिक्ट इज बिकॉज one or other party is trying to control the organization. तो दूसरा व्यक्ति जब ऊपर आता होता है उसको अच्छा नहीं लगता है तो उसको दबाता है, झगड़े करवाता है, मारामारियां करवाता है, तो बच के रहना। एनालाइज द अबव क्वेश्चन एंड यू विल हेल्प अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, डिजायर्ड वे टू सॉल्व एग्रीमेंट, कॉन्सेंसस इज द बेस्ट। और हमारी संस्था में जैसे हम बोलते हैं कि जो भी हम करें 100% कॉन्सेंसस से करें, ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता, दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन, मोस्ट डिजायर्ड, mutually acceptable with some compromise. Mutually acceptable with some compromise. There may not be 100% consensus. सर सभी बैठे मेरे पॉइंट से एग्री नहीं होते, फिर भी हम सोचते हैं कि सर संस्था की भलाई के लिए तुम एक कदम आगे बढ़ो, मैं एक कदम आगे बढ़ूं, पर हम संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इश्यूज को थोड़ा ठंडा करें। दैट इज म्यूचुअली एग्रीएबल विथ सम कॉम्प्रोमाइज। थर्ड इज आर्बिट्रेशन, लास्ट ऑप्शन है। तीसरी पार्टी जब आती है, हमारे घरों में जब झगड़े होते हैं भाई भाई के, और जब संबंधी और दोस्त और वो जब बीच में नेगोशिएशन करने को आता है ना, झगड़े का स्वरूप बहुत खराब हो जाता है। भाई भाई आपस में बैठ के झगड़े सॉल्व कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है और बाजू वालों को मालूम नहीं पड़ता है। तो आर्बिट्रेटर को बीच में लाना, दैट इज ए लास्ट स्टेप। हमारे झगड़े में नए पद्मा जी हमारे घर के ही है, तो झगड़ा उनके तक नहीं जाना चाहिए। अगर मेरे आपके बीच में है ना, पहला सॉल्यूशन आप और मैं बैठ के करें, फिर कमेटी बैठ के, लास्ट रिसोर्स रहेगा कि हम साहिब जी के पास जाए, क्योंकि साहिब जी को बहुत दुखेगा कि इतनी मेहनत करके मैंने संस्था बनाई, यहाँ ये क्यों हो गया। तो वो लास्ट रिसोर्ट है। तो आर्बिट्रेटर वेल विशर रहते हैं, पर वो लास्ट रिसोर्ट है। एंड मॉनिटरिंग जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आई थिंक वी गो अहेड। की पॉइंट्स, ऑलवेज स्माइल इन कंफ्लिक्ट। कंफ्लिक्ट हुआ, रोने की जरूरत नहीं, डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं, डिप्रेशन की गोलियां खाने की जरूरत नहीं, एक दूसरे को गाली देने की जरूरत नहीं, हंसते रहिए। टेक क्रिटिसिज्म इन राइट स्पिरिट। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हाई कंफ्लिक्ट्स आर नॉट रिजॉल्व्ड इज लीडर कैन नॉट टेक द क्रिटिसिज्म इन राइट स्पिरिट। आज अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूं, मेरे कोई मेंबर पॉइंट आउट करता है, बट ऑफकोर्स मेंबर्स को भी इतना कहना चाहूंगा, क्रिटिसिज्म शुड बी इन राइट वे, राइट इश्यू पे होनी चाहिए, राइट वे पे होनी चाहिए, राइट प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए और राइट टोन में होनी चाहिए। झगड़ा करने के लिए नहीं, इंसल्ट करने के लिए नहीं, ह्यूमिलेट करने के लिए नहीं, संस्था को सुधारने के लिए। उसको मैं कहता हूं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। सो लीडर को क्रिटिसिज्म को राइट स्पिरिट में लेना चाहिए,
good human relationship with the team is the most important in resolving the conflict. अगर मैं मेरी टीम के साथ अच्छा रिलेशन रखता हूं ना, that is one of the best way of resolving the conflict. Reward in public and reprimand in privacy. शास्त्री जी ने बहुत बोल दिया सुबह में, उसके बारे में आगे नहीं जाऊंगा, पर बहुत इंपॉर्टेंट है. बी एसर्टिव लीडर. लीडरशिप में क्या होता है? एक पैसिव लीडरशिप होती है, जिसको दूसरे चलाते हैं, वो तो खाली नाम का लीडर होता है. एक बहुत एग्रेसिव लीडरशिप होती है, जहां लीडर ऐसा सोचता है कि आई एम द बॉस. पर एक ऐसा लीडर होता है जो फर्म रहता है, बट एट द सेम टाइम फ्रेंडली रहता है, उसको बोलते हैं एसर्टिव लीडरशिप. तो अगर गलत सजेशन है, उसके सामने लीडर को झुकना नहीं है, पर गलत सजेशन को भी फ्रेंडली वे में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे. बी क्लियर इन योर विजन एंड गोल. गिव करेक्ट इंफॉर्मेशन इन टाइम. ट्रांसपेरेंसी, प्रॉपर प्लानिंग, नॉलेजेबल एंड बी ए गुड लिसनर. बहुत शास्त्री जी ने बता दिया, मैं नहीं जा रहा हूं उस टॉपिक पे आगे. आगे भाई. Thank you very much, friends. I think I have completed in less than my time. And yeah, I'm coming to that, Sajid ji. Friends, बोलिए. ये mic दीजिए ना, No, it's okay. It's okay. It's a small gathering. We can definitely speak. हाँ. I think one thing in the organizational structure of NJDF, one thing is missing is organizer. We have a post created which is called organizer, and it is always there. Right now, Dr. K.K. Shah is an organizer. Yeah. One. No, advisor. Organizer. He's an advisor or organizer? Organizer. I was so far made to understand he's an advisor. It is Anyway, Sajid ji, एक minute. First, I will clarify this point. One minute, friends. The Constitution part is coming. This chart which I have shown, I already told you, it may be slightly different than what is given in a constitution. This is a subject to our understanding and ratifying in a next JP if everybody likes this setup. That is one. Okay, next. There is another query. In the protocol, in a local chapter or a regional chapter or a state chapter, and NJDF office bearers, if they are coming, if two different groups are coming together, what should be the protocol? See, I will tell you how it starts. If like in other organizations like Lions and Rotary, जब डिस्ट्रिक्ट रहता है और इंटरनेशनल ऑफिसर्स आते हैं, the international officers are first recognized. Like in today's meeting, if Sudhir Bhai is present and I am present, I am a chapter chairman, he is a national chairman. He is first person to be recognized. Then the national president, that is Beganiji. Then comes the Dr. KP Jain, then will come the Dr. Bharat Verma. So national will be first. That's why I showed first national, regional and the chapter level. Right? So national will be the higher in category. Anything else, friends? But there is two regional committee same in there. Then What? same regional committee, two regional committee is there. Both you have to take. Then you cannot decide which name to take first. One is organized. So one is organizing is always See, normally what we do, regional coordinators, and we take 1, 2, 3, 4 names. Now I will tell you one thing. In this protocol also, when there is a function, there may be 5 size एक भी में ना. When there is a function, 5, 7, 8, 10 स्पीकर रहते हैं. अब हर आदमी आके अगर शुरुआत करेगा, महाराज साहब जी को कोटि कोटि वंदन, सुधीर भाई, बेगानी जी, केपी जैन, भरत परमार और वैसे 10 ऑफिसर बैठे होंगे, तो आप इमेजिन कीजिए कितना टाइम जाएगा. तो हमारे लाइन्स में एक सिस्टम है कि जो आदमी प्रिसाइड करता है, लोकल चैप्टर, जैसे आज यहाँ पे लोकल चैप्टर है, मैंने प्रिसाइड किया, तो आई ओनली टेक द नेम ऑफ एज पर प्रोटोकॉल ऑफ ऑल द ऑफिस बेरर. नेक्स्ट जो पर्सन आता है स्पीच देने को, वो सिर्फ शुरुआत करता है कहां से? प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड फ्रेंड्स, एंड ही स्टार्ट हिज टॉपिक. सो वी आर नॉट वेस्टिंग द टाइम इन द रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग. सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल. ये जब डिटेल में आएंगे, बिकॉज हियर आई वांटेड टू गिव अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ हाउ प्रोटोकॉल शुड बी. एनीथिंग एल्स, फ्रेंड? Are we suggesting the similar pattern for NJDF, or Gurudev has to say something else? What protocol we should follow at our meetings? We can decide. See, these are all subject That is to. exactly what we are discussing right now. Yeah, no. Today. एक मिनट, छाजेर जी. Today we are not discussing. एक मिनट, मैं बता रहा हूं.
आज हम जो कर रहे हैं ना, ये एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होना चाहिए। ऐसा जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वाले बैठे थे वो सोच रहे थे, नेशनल बॉडी के भी जो मेंबर बैठे थे, इससे प्रपोजल पुट, वी विल हैव मैनी मोर मीटिंग। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो हमने लास्ट में पास किया है, अगर हमें लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसको हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बदलना जरूरी है, तो वो भी मेंबर इन जनरल बॉडी कैन डू बिफोर वी रजिस्टर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको मैं बताता हूं, एज ए संस्था में मैं बहुत जुड़ा हुआ हूं, एक बार कॉन्स्टिट्यूशन रजिस्टर हो गया ना तो उसको बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। साहब जी कुछ भी बोले, चैरिटी कमिश्नर इज वेरी स्ट्रिक्ट, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है डोम की भाषा में। हमारे लायंस डिस्ट्रिक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया है जो हम पिछले 15 साल से नहीं बदल पा रहे। बहुत सारे टॉप लेवल के सीईओ को हमने अपॉइंट किया, वो बाद में घूम फिर के हमको बोलते हैं ये डिसॉल्व करो और नया ट्रस्ट बनाओ, क्योंकि बदलना जाना इज मोर हेडेक देन मेकिंग ए न्यू ट्रस्ट। सो हम अभी रजिस्टर, फॉर्चुनेटली अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो अनफॉर्चुनेट पार्ट है, पर मैं उसको फॉर्चुनेट इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि उसको हम वापस एक ग्लांस देके जो भी चेंज करना है विथ कंसेंसस ऑफ एवरीबॉडी, नॉट ऑफ एनी इंडिविजुअल विल। बराबर है? ठीक है। I have a suggestion, another suggestion. As we are doing the leadership workshop here, suggestion is we should have a particular protocol for our meetings. Like it should start from Deepa Prajulan, Mahavir Swami का पूजा, गुरु वंदना, जो कुछ वो तो आप नहीं, दैट इज ए पार्ट ऑफ एजेंडा। there should be नो नो नो, नहीं, आई थिंक आप मिस्टेकन। प्रोटोकॉल इज रिकॉग्नाइजिंग ऑफ द ऑफिस, नहीं मेरी बात सुनिए, प्रोटोकॉल इज रिकॉग्नाइजिंग ऑफ ए ऑफिस बेरर। मैंने गुरु भगवंत का नाम इसमें नहीं लिखा, आई डोंट वांट टू शो इन अवर पेपर कि गुरु भगवंत हमारा ऑफिस बेरर है। आई थिंक हम उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। बट जहां मीटिंग होगी पहले हम गुरु भगवंत को वंदन करते हैं और फिर हमारे मीटिंग की शुरुआत होती है। बट दैट इज ए एजेंडा, एजेंडा इज डिफरेंट एंड प्रोटोकॉल इज ए डिफरेंट। प्रोटोकॉल इज फॉर ऑफिस बेरर, इट्स ए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इट इज फॉर ऑफिस बेरर। एजेंडा जब बनता है फंक्शन का, वहां पे नेचुरली पहली थिंग गुरु भगवंत को हम वंदन करते हैं, दूसरी थिंग दीप प्रज्वलन होता है, तीसरा मंगलाचरण होता है, जो आज अनफॉर्चुनेटली हम भूल गए। मैं बता रहा हूं, उस 15 मिनट की देरी के टेंशन में हम भूल गए, तो उसको हमको 2-3 टॉपिक के बाद लेना पड़ा। वी रियलाइज अवर मिस्टेक, वी एक्सेप्ट अवर मिस्टेक एंड वी अपोलाइज फॉर इट। होता है फंक्शन के गाई में, प्रिंट भी वैसे ही किया हुआ था, पर वो भरत भाई अनाउंस करने वाले थे, मैं माइक पे था, वो लेट हो रहे थे, तो मैंने आगे का टॉपिक अनाउंस कर दिया, वो माइक पे आ गए। अब गेस्ट को बीच में रुकाऊं अच्छा नहीं लगता है, सुधीर भाई बोल रहे थे उनको बीच में रुकाऊं या मैं बीच में रुकूं अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमने सोचा फिर साहब जी को हमने विनती की, भाई गलती हो गई है, अब आप मंगलाचरण को, नहीं तो मंगलाचरण कम फर्स्ट, हमारे फंक्शन की शुरुआत वहां से होती है। राइट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। हाँ बोलिए सर। क्या अभी काफी जगह में लोकल लेवल्स पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉन मेडिको जो जेंट्स है वो भी बहुत दानशूर है, हेल्पफुल है, जनरस है, सब है, तो ऑलरेडी वो लोग कुछ मुकाम पे पहुंच चुके हैं, डोनेशन काफी दे चुके हैं, बड़े पोजीशन पे, हम लोग उनको कैसे टैकल करेंगे? हमने जो बॉम्बे जेडीएफ के कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड लिखा है, जैन बाय बर्थ और फेथ। अब आपको लोकल बॉडी पे आपको डिसाइड करना है, बट देयर इज अ रिस्क फैक्टर आल्सो इन्वॉल्व, तो इसलिए बहुत संभल के उस पर डिसीजन लेना है। क्या होता है कि जब आप मेंबर बनाते हो, मैं आपको एक जोक्युलरली बताता हूं, हमने जब लायंस क्लब ऑफ चर्चगेट की शुरुआत की थी, मैं फाउंडर प्रेसिडेंट था। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे पास कोई राइट नहीं है, पर हमने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग वर्बली की थी हमारे मेंबर के साथ बैठ के कि किसी लॉयर को अपने क्लब में मेंबर नहीं बनाने का। लॉयर क्लब में आता है ना, वो मुद्दे डाल के झगड़े ही करता रहता है, तो बोला किसी लॉयर को अपने क्लब में मेंबर नहीं बनाना। और हमारे एक एज ग्रुप का, तभी मैं 32 साल का 33 साल का होऊंगा, तो हमने एक नक्की किया था कि ज्यादा एज डिफरेंस वाले को क्लब में नहीं लेने का। तो हाथ जोड़ के विनती करके वो बोलेगा साहब जी आपको हमारे यहाँ नहीं छपेगा, आप कहीं और जाइए, किसकी प्रपोजल आ गई। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट मेंबर को साथ में लेके एक कॉन्सेंसस से हमने वर्बल डिसीजन लिया था। नॉन जैन को जेडीएफ में आपको इन्वॉल्व करना नहीं, नॉन मेडिकल जेंट्स, नॉन मेडिको जैन को हमने जो बॉम्बे में किया, वी आर टेकिंग देम एज ऑनररी मेंबर्स, एफिलिएट मेंबर, but they are not holding any official position. One,
Second thing, they were no voting rights. Even if they are coming in JBM, they are just sitting as an observer. क्योंकि क्या होता है, डॉक्टर्स की संस्था है, डॉक्टर्स को मैनेज करने दो, डॉक्टर्स को आगे बढ़ाने दो, हमें हमारे सपोर्टर की जरूरत है, उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत है, आप उनको एज ए ऑनररी मेंबर और एसोसिएट मेंबर लीजिए, बट एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी डन बाय द डॉक्टर्स. तो हमने वैसा बॉम्बे में किया है, वो हर एक चैप्टर को अपने हिसाब से सोचना है क्या करना है उसको. एनी अदर क्वेश्चन? फ्रेंड्स, आई थिंक वी आर, एक मिनट फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूंगा. एक्चुअली रसिक भाई को पूछने के सवाल आप सब मेरे पे डाल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक लेके वो बाद में आ रहे हैं. तो डिस्कशन इज गोइंग बियॉन्ड माई सब्जेक्ट. नहीं, हाँ बोलिए सर. Sri Kevalbhai Jain, with the permission of Nai Padma Sagar ji and our present chairman of the Sudhir Shah, I am sure that I am not misinformed that the chapter, headquarter chapter has not been registered today. Am I right? I already told you just now, it is not Am I right registered. or wrong? No, it is not registered. Now, this similar situation arises. You have not registered by anybody. In 1998, the first chapter has been registered with a proper understanding, of Sri Nai Padma Sagar ji and Sudhir and myself knows. Absolute protocol has been made. And similarly, the Indian Medical Association was made before 67 years, headquarters. And Ahmedabad Medical Association is by 105 years. There is no contravention between Ahmedabad Medical Association and headquarters. Similarly, by any means, except the principle of Jainism, there has been no difference between the headquarters and Ahmedabad chapter. This is my suggestion and information, nothing more than that. We have to, subject is open to discussion by everyone, because everybody may have a different opinion on this setup, but we can have a we can have a discussion on this. Friends, I think I will take your leave because we have to go to our next subject. Next subject is I think Rasik Bhai. Now, next subject is again very interesting subject, that is constitution. Part of question you were throwing on me. Please catch hold of Rasik Bhai, and he is our National Secretary, and he will also discuss on a very important subject, that is record keeping. One of the mistake we at chapter and national and level do, we are not maintaining record, which is very important thing for the future. So that record keeping, he will throw some light on you. टाइम काफी हो गया है. मैं इन शॉर्ट रिकॉर्ड कीपिंग और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनजेडीएफ के बारे में बताऊंगा. Now, no, it's fine. Fine, no? Okay. Record keeping is very important for any organization, because whenever we need to go back, unless we have kept the record, it will be difficult. Whether it is to be registered with Charity Commissioner or to continue ATG, or if there is any conflict arises, then we have to go back with the what was registered and all that. These are the records which are compulsorily one should keep in all, even in your local branch. One is the register of membership. The second is registration papers of the trust, constitution, ATG certificates of past and present. Past particularly when you need to reapply, you have to have that. All the receipt books, because sometimes the confusion may arise whether X person has paid the fees or not. All account books, audited account copies and certificate of filing, IT returns, minutes of managing committee and general body meeting. Because again, as I told you, sometimes some questions arises that in the last meeting this was discussed and this was not passed, vagara vagara. List of donations received, list of beneficiaries of financial help along with the application and full details. This particularly when we go further, when the applications comes for the help to a particular person or for particular project, then we have to have all the documents, and whether we give the help or not, it is better to keep the record.
Then is the all investment documents, particularly when it is transferred from, particularly for NJDF. Today headquarters may be XYZ, tomorrow it may be some different cities. So we'll have to transfer all that accounts and other things to from city to city. Then list of office bearers past and present. Next slide please. And these are the records which will help for any organization, which includes copy of all circulars, details of all service activities carried out, photographs and projects of functions. This is very important when you give a project, and when you go to a particular donor, if we have activity reports of the previous functions, then it will definitely help you to get the donations. Amounts received and given to the members and others by your JDF chapter. All this record, if you keep, it will help you in your expansion and activities. Next slide. Now I am going to discuss about the constitution which we have right now and some of the suggestions which have been given over last 1 month. So there will be some discrepancies. Wherever there is a discrepancies, I will let you know. Right now we have name is National Jain Doctor Federation, in the bracket India. Now that bracket in India means tomorrow we can have National Jain Doctor Federation, maybe in USA, UK and many other countries. So we want this a standard format in which it should be registered even in other countries. Then the second is the local chapter, where it will be Jain Doctor Federation, Mumbai, Ahmedabad, whatever city it has. That will be the standard way of keeping the names. This vision and mission was, the words and everything was framed about 3 years back, and this was discussed when Sujar Shah, myself and under the Mishra of Laya Padma Sagar Shurishwarji Maharaj Sahib, this was decided, and I am going to read out till the projector starts, and I hope that in coming years I don't have to go through the book. We should all know about our vision and mission well by heart. Our vision is the National Jain Doctor Federation is committed to the scientific application of the principles of Jain religion for physical, mental and spiritual health, and to create an atmosphere of compassion and universal brotherhood for global peace and happiness for all living beings. In addition, it is committed to propagate the preaching of Tirthankars and Rishi Munis. And this, whatever vision we have, to reach to that, we have to have a mission. And our mission is to unite Jain doctors globally and inspire them to apply science tempered with spirituality. It is not just the science, science tempered with spirituality, and strive towards the evolution of a value-based society for the welfare of all living beings. Now here we say all living beings, it means not only humans but all animals, birds, trees, everybody. So that is our mission. The third part is the financial year. The standardized should be 1st April to 31st of the March. Then what should be the tenure of the office bearers? What we have decided, or rather in our constitution, is 2 years per term, and then one can repeat another 2 years, maximum of 4 years in any particular post. This is as per the constitution. Now for the president, chairman, it is mandatory to complete one tenure of 2 years as an office bearer, and this would be applicable after the completion of first 4 or 6 years. Now as Dr. K.P. Jain already mentioned, that we have not yet registered our NJDF constitution, so we have scope of changing some of the things if we desire so, maybe in the next GBM, and before that
it will be circulated with whatever redrafting or whatever amendments we have. Then aims and objectives, they are all given in the books. But some of the important thing would be, before I go to that, the aims and objectives. It's to serve any person without the difference of their caste, creed or political opinion and religion, promote holistic health, education and healthcare. Basically standard all these aims, whatever our Jainism has, all that has been included, where it includes even for animals, healthcare, to promote humanity, compassion, world peace, to serve Chaturvat Singh, Sangh, Vagara, Vagara, Vagara. And same are the objectives, but these are not very important, so I am going to, not very important in the sense we have to know each and everything very well, and some of the things are going to be covered in today's group discussion, as well as some of the things would be covered tomorrow during the delegates' presentation, and some of the things are going to be told by some of our other speakers. So I am going to go further. The question came about the membership. We have different kind of memberships today. One is the standard life membership, where the subscription is ₹500, and the person, whoever is doctor, whether he is allopathy doctor or homeopathy or any other doctor, they are all included in a life membership. Second we have is the associate membership, where the students of any of these pathis can become members.